Imagine a job so demeaning, so mentally and physically demanding that you start questioning your very existence. A job that stigmatizes you and restricts you to a particular community in such a manner that even if you want to look for another source of employment, the society will not let you do that. They will keep on reminding you from where you come from and what exactly you're meant to do. Manual scavenging. Manual scavenging is not just a sanitation concern. It is a legacy of caste, neglect, and institutional failures. In the world of development, India is claiming that it is attaining development and has attained digitalization. But the very fact that there are more than 1 lakh people who still clean human excreta manually without any protective gears, and there are more than 6 lakhs dry latrines which still exist without any proper water facilities, it is quite enough to shatter all forms of illusions of India becoming a Vishwaguru. Mahatma Gandhi had once said that if you want to find the purpose of your life, you should dedicate yourself to the service of others. But what if the society does not let you go beyond that service? It keeps on reminding you that you are meant to do a filthy job. Hello, everyone. Welcome to Zen Study. This is Kritika, and today we are going to deal with a very crucial and very neglected topic. We are not going to discuss about this topic just from a policy concern, but something which is important as a human factor. This topic of manual scavenging is important for your UPSC exams, especially for the upcoming mains, and it occupies a very important position in your GS paper too. So let's discuss this topic and try to find out ways how we can help fight this menace. So, coming to basically what manual scavenging is, I'll try to keep the language bilingual. So, manual scavenging refers to the manual handling of human excreta from dry latrines, open drains, railway tracks, septic tanks, sewers and manholes. Basically, जब हम human excreta, human wastage को dry latrines को manually deal करते हैं, हम उसको हाथों से साफ करते हैं बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, उसे हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। और ये एक टाइप की बहुत ही ज्यादा डीह्यूमनाइजिंग, बहुत ही ज्यादा हीन तरीका है किसी भी सोसाइटी को नीचा गिराने के लिए, क्योंकि आप इस काम को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए। हम आगे समझेंगे और ज्यादा डिटेल में कि हाउ हिस्टोरिकली सम पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको एक काम के लिए बांट कर रख दिया गया था और उन्होंने जितनी बार कोशिश की आवाज उठाने की और अपने उस काम को छोड़कर कोई और काम पकड़ने की, तो देयर हैव बीन सर्टेन फैक्टर्स जिस वजह से बार बार उन्हें फोर्स करके वही काम करने को मजबूर किया गया। और ये हम बात कर रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की, जो आप समझ चुके होंगे अब तक। सो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें मैनुअल स्कैवेंजिंग की, सो एंशियंट इंडिया के टाइम से ही जब अर्ली वैदिक पीरियड था, उस टाइम पर बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर डिटेल्स नहीं है। बट द लेटर वैदिक फेज में मनुस्मृति एंड देयर आर सम अदर बुक्स जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में मेंशन्ड है। और कुछ ऐसे पर्टिकुलर कास्ट थे, स्पेशली जब हमारे वर्णा सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट होने लगे लेटर वैदिक टाइम पर, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कास्ट थे सच एज वाल्मीकिस, हेलास। सो इनको एक पर्टिकुलर काम के लिए ही रख दिया गया, एक पर्टिकुलर काम के लिए ही नियुक्त कर दिया गया, और दे वर नॉट अलाउड टू मूव बियॉन्ड दैट वर्क। ये they were the ones who were responsible for the basically they were the ones who were sanitation workers, but उनको इतने गंदी नजर से देखा जाने लगा because yes it involves getting into the dirt and cleaning the filth। तो अगर आप गंदगी साफ करेंगे तो आप खुद भी गंदे होंगे। इस वजह से this work was considered very disgusting, this work was considered very dehumanizing, क्योंकि आप किसी और इंसान की गंदगी साफ कर रहे हैं और साथ साथ
वही इंसान जिसकी गंदगी आप साफ कर रहे हैं, वही इंसान आपको हीन नजरों से देख रहा है। अगर हम मिडीवल पीरियड की बात करें, ये सफाई कर्मचारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था मुगल पीरियड के टाइम पर। बिकॉज यस, राजा महाराजा थे, उनको ऐसे सफाई कर्मचारियों की जरूरत थी। सो दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग पीपल, एंड अगेन देयर वाज ओनली अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो ये काम कर रहा था, तो ये अपॉइंटमेंट्स भी उन्हीं सेक्शन से होगा जो पहले से एंशिएंट टाइम से ये काम करते आ रहे हैं। हम अगर कॉलोनियल पीरियड की बात करें, तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर ये बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट हो गया। ये जो सिस्टम था ये बहुत ज्यादा रिजिड हो गया, बिकॉज इन द लाइक जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया, सो दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग पीपल, स्टार्टेड गिविंग पीपल गवर्नमेंट जॉब्स of Safai Karmacharis, and they made sure that these people were appointed from the Dalit community, and जो previous हमने जिन communities वाल्मीकिस हेलास जिनकी बात की थी, उन्हीं community से ये लोग posts निकालना शुरू किया इन्होंने, the British, and they made sure that only these community people apply. So ये बहुत ही ज्यादा deep rooted, जो एक बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से सेटअप चलता आ रहा था, अब इसको एक institutional backing भी मिल गई, because administrative jobs को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उनको लाइक प्यून्स एंड ऑल दीज लोगों की जरूरत थी, पीपल हु वुड बी क्लीनिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड ऑल। सो इनको इंस्टीट्यूशनलाइज करा दिया गया और बकायदा गवर्नमेंट जॉब्स इनको दिया जाने लगा। सो जो काम पहले से ही बहुत हीन था, अब इवन आफ्टर इट गॉट इंस्टीट्यूशनलाइज एंड गवर्नमेंट जॉब्स भी इनको मिला, इट वाज स्टिल लुक्ड डाउन अपॉन, बिकॉज व्हाई द पीपल हु वर selected, the people who were appointed from for these jobs, they were from the untouchable section of the society. पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ऑफ कोर्स हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सो पीपल रियलाइज दैट अनटचेबिलिटी इज समथिंग दैट शुड बी इराडिकेटेड। सो आर्टिकल 17 वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें अनटचेबिलिटी एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इसको इराडिकेट करने की कोशिश की गई। इवन गांधी जी took a lot of steps in this. Ambedkar also took a lot of steps in this. He made sure that the Dalits and the suppressed section, vulnerable section of the society comes up. Even गांधी जी ने उनको एक पर्टिकुलर नाम हटाकर उनको हरिजन का नाम दिया। सो अ लॉट ऑफ वर्क बैक एंड में चल रहा था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे देश को आजादी मिली, उसके बाद हमने ये आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इलीगल हो गया। बट अगर हम सच में देखें, तो इवन ऑल दीज थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड, अनटचेबिलिटी स्टिल रिमेन्ड, मे बी नॉट इन पेन एंड पेपर, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी चेक करें, तो ये अभी भी चलता आ रहा है, क्योंकि यस, दीज आर द पीपल हु डील विद फिल्थी जॉब्स। ये गंदगी में घुसकर गंदगी को साफ करते हैं। इस वजह से सोसाइटी अभी भी इनको हीन नजर से देखती है। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें रिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग, सो ये 2011 का डेटा है, बिकॉज अभी तक हमारी जो जनगणना है, हमारा जो सेंसस है, वो अभी तक हमारे पास आया नहीं है। सो अप्रोक्सीमेटली 1,82,505 households have reported that manual scavenging is their primary occupation. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 1 लाख से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। अगर हम हाउस होल्ड्स देखें जिनमें ड्राई लैट्रिन्स अभी भी प्रिडोमिनेंट है, दिस इज 2011 डेटा, इट हैज changed as of now. So 7,40,078 dry latrines have been recorded in 2011. Of course, now we can say that the dry latrines have reduced. Dry latrines हम उनको कहते हैं जहां पर वाटर फैसिलिटी नहीं होती है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको खुद हाथ से कलेक्ट कर कहीं और हम डिस्पोज करते हैं। हम नहीं, दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको हम मैनुअल स्कैवेंजर्स कहते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सर्वे देखें, द रीसेंट गवर्नमेंट सर्वे अगर हम देखें, तो फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 67,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी भी हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, दैट पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर डूइंग दिस जॉब, because now it has been made illegal. Manual scavenging without mechanized form, it has been made illegal. So people don't want to accept. ये तो
रिकॉर्डेड नंबर्स है, बट अगर आप प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी देखने जाएंगे तो ये नंबर 1 लाख के आसपास तो अभी भी है। और अगर हम सीवर डेथ्स, बिकॉज मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ वेरी टीडियस, लाइक इट्स अ वेरी डेंजरस जॉब, क्योंकि आप सीवर्स में घुसकर, आपने शायद देखा होगा देयर आर वेरियस मैन होल्स, जब भी आप रास्ते में चल रहे होंगे तो छोटे छोटे मैन होल्स होते हैं, इट इज कवर्ड विथ अ लिड। वो उस लिड को उठाकर, इट इज बेसिकली सीवेज, जो हमारे सारे हमारे बिल्डिंग्स से, हमारे घरों से जो भी मल मूत्र इकट्ठा होता है वो सीवेज के थ्रू पास हो रहा होता है। सो दीज पीपल दे एंटर दीज सीवेजेस एंड दे क्लीन इट एंड देन कम आउट। उस सीवेज में इतने टॉक्सिक गैस, इतने टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतनी सारी टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, एंड दे स्टिल हैव टू गेट डाउन, दे क्लीन इट एंड देन दे कम आउट। तो दे सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ diseases, skin diseases, even brain related disease, because it's a very demeaning job, वो बहुत ही ज्यादा irritating job है, getting down inside in that dark chamber and cleaning the sewages and coming up. So it's kind of very disgusting. If you can just think and imagine about it, how painful and how dangerous this job actually sounds. ये sound इतना dangerous कर रहा है, like I'm getting goosebumps while talking about this. Imagine the person who's going every day और वही उसकी livelihood है, तो कैसे ना वो कुछ टाइम के बाद अपने एग्जिस्टेंस पर, अपने अस्तित्व पर क्वेश्चंस उठाना शुरू करेगा। सो अगर हम सीवर डेथ्स की बात करें, सो 400 डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड, ये गवर्नमेंट की रिकॉर्ड है, बट आए दिन वी हैव हर्ड, आप अगर न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहेंगे, न्यूज चैनल्स देखते रहेंगे, तो देयर आर आए दिन बहुत सारे डेथ्स ऐसे होते रहते हैं, 1-2 केसेस तो आपको सीवेज डेथ्स के सुनाई देते ही होंगे। सो this is what the Ministry of Social Justice and Empowerment has recorded, but actual data is definitely more than this. Now, coming to the social issues associated with this manual scavenging से लेकर social issues mainly क्या है? So, सबसे पहली बात, सबसे पहली जो issue है वो ये है that they belong to the Dalit subcastes. Okay, these are the name of the different subcasts जो अभी भी manual scavenging follow करते हैं। तो एक social ostracism का जो concept है कि उनको neglect किया जाता है, although they are now part of the mainstream society, ये हमारे बीच के लोग ही हैं, शायद हमारे साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे साथ ऑफिसेज में काम भी करते हैं, बट फिर भी इनको हीन नजर से देखा जाता है। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ ऑफिसेज में, आपके साथ स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे। मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी इज स्टिल डूइंग द सेम जॉब। शायद थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट हुई है, कुछ और लाइवलीहुड ऑप्शंस उनको मिले होंगे, बट अगर डीप डाउन हम देखें तो वो अभी भी यही काम कर रहे हैं। ऑल्दो इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल एट द सेम लेवल। कुछ दिनों के बाद हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, एंड स्टिल द सिचुएशन इज द सेम, वी हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल। एट ऑल वुड बी द रॉन्ग थिंग टू से, we have come forward in many ways, but still this is one thing, जब तक ऐसी चीजें, जब तक ऐसे issues हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते रहेंगे, हम कह नहीं सकते कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं। We might be towards that, we might be aiming towards that, but we are very far from that aim. They still face the concept of untouchability. Why? Because they deal with a filthy job. तो अगर आप गंदगी में उतरेंगे, अगर आप गंदगी को साफ करेंगे तो उसमें उतरना पड़ेगा। So obviously you will get dirty. So that is one of the reasons why untouchability might have started. बट इसको इतना डीप ड्राउन, इतना डिग्रेड करके अभी भी इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। नॉट मे बी इन पेन एंड पेपर, नॉट मे बी हम शायद इसको अक्नॉलेज नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम भले इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, बट वी डोंट एक्सेप्ट दैट या वी फॉर प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। बट स्टिल the person who comes to clean your mess, the person who comes to clean all the dirt that you have made, you still want to maintain a distance from that person. हमारे यहाँ जो कूड़ा उठाने के लिए जो लोग आते हैं, what do we call them? We call them कचरे वाले भैया, we call them टॉयलेट क्लीन करने वाली आंटी, सफाई वाली आंटी, बट दे आर नॉट कचरे वाले भैया। कचरे वाले तो हम हैं, कचरा तो वो साफ कर रहे हैं ना हमारा। We are the ones who are generating the कचरा, they are the ones who are cleaning it, but फिर भी हम उनको
कचरे वाले भैया बोलते हैं, क्योंकि दैट इज द नेम दैट हैज बीन एसोसिएटेड। हम उस काम को गलत नजर से देख रहे हैं, जबकि वो एक बहुत ही पायस काम है, वेरी होली होली जॉब टू बी ऑनेस्ट। वो आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं, वो आपका पाप धो रहे हैं, बट स्टिल दे गेट द टाइटल ऑफ कचरे वाले भैया। ना what are the other issues associated? नेक्स्ट इज द जेंडर्ड ऑपरेशंस। जैसे कि मैंने कहा कि अभी लाइक स्पेशली इन अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें या सिटीज की बात करें बेसिकली, तो वहां पर इन लोगों को शायद अदर लाइवलीहुड ऑप्शंस भी मिले हैं। सो द मैन ऑफ द हाउस दे माइट गो आउट एंड डू सम अदर वर्क, but the women of the house they are still employed in manual scavenging. Why? Because just see, like अगर आप अपने पीजीज और अपने हॉस्टल्स में भी रहते हैं, so who comes to clean the toilets? It's usually a woman who comes to clean the toilets. So द क्लीनिंग वाला जो जॉब है वो अभी भी ये औरतें ही कर रही हैं। तो जेंडर्ड मतलब ये दो टाइप के ऑपरेशन फेस कर रही हैं, एक तो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन एंड जॉब बेस्ड ऑपरेशन दे आर फेसिंग। द नेक्स्ट इज द जेंडर्ड ऑपरेशन, बिकॉज दिस वर्क is something which requires sanitation and hygiene, and due to this these people they still suffer from the concept of improper hygiene, because while they are cleaning it they don't have any protective gear, जिसके वजह से वो खुद बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और खुद बहुत इन सब चीजों से डील कर रहे होते हैं when it comes to health and all other aspects. So this is another issue which is related to this. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस बेसिस पर हो रहा है आपने देखा भी होगा, दे पर डे मोस्ट प्रोबेबली दे वर्क ऑन अ फ्रीलांस बेसिस, दिहाड़ी पर काम करते हैं वो एक दिन आते हैं सफाई करके जाते हैं, सो मे बी दे गेट समथिंग आउट ऑफ इट, बहुत कम पैसे मिलते हैं। अगर like where in the PG where I stay, the woman who comes to clean, she gets 1,000 per month. She comes once or twice a week to clean the toilets of the all the PGs, all the rooms which are there, and approximately there are 20 to 25 rooms. So 1,000 रुपए इनको मिलते हैं महीने के। सो यू कैन सी कितना कम पैसा इनको मिल रहा है, और ये भी फ्रीलांस बेसिस में काम करते हैं, इनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो औरत आज काम कर रही है वही औरत कल भी काम करेगी, बिकॉज दे वर्क ऑन फ्रीलांस बेसिस। जो जब मिल गया इनको उठा के उनको कह दिया कि आप साफ कर लो और उस बेसिस पर आप पैसे लेकर जाओ। तो 1,000 to 2,000 रुपीज पर मंथ दे अर्न बाय क्लीनिंग 20 to 30 टॉयलेट्स। इमेजिन कितना कम इनको पेमेंट मिलता है फॉर डूइंग अ जॉब विच इज सो पायस। किसी की गंदगी आप साफ कर रहे हैं अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा कर, और फिर भी उसके बदले में आपको इतने कम पैसे मिल रहे हैं। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज द अनदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट, जो मैंने सोशल ऑस्ट्रेसिज्म और मेंटल हेल्थ की बात की, कि ना सिर्फ ये लोग होते हैं द पीपल हु आर वर्किंग, ना सिर्फ इन लोगों को हीन नजर से देखा जाता है, बट ऑल्सो देयर स्टूडेंट, ऑल्सो देयर चिल्ड्रन। इनके जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी गलत नजर से देखा जाता है, उनके भी मजाक उड़ाए जाते हैं, एंड इवेंचुअली दे ऑल्सो ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल्स and end up taking the same roles as their parents. So social ostracism and mental health is another issue which is associated with them. Also this work is very dangerous. ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग काम है कि आपको मैनुअल लेबर की तरह जो काम करना पड़ता है, एक गंदगी को खुद हाथों से उठाकर खुद साफ करना पड़ता है, सीवर्स में घुस घुस के आपको सफाई करनी पड़ती है, तो ये डेंजरस काम है। बहुत ही ज्यादा हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड काम है, एंड हेल्थ हैजर्ड्स इसके साथ मैंडेटरीली आते ही हैं, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अगर डिस्गस्टिंग थिंग्स के साथ रिलेटेड रहेंगे, कॉन्स्टेंटली अगर आप क्लेनलीनेस और हाइजीन वाले काम कर रहे होंगे, साफ सफाई का काम कर रहे होंगे विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर, विदाउट एनी पीपी किट, तो डेफिनेटली यू आर बाउंड टू गेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दैट वर्क. So all these things can be related to the mental harassment and the social ostracism that they are facing. Next, let's discuss some legal framework and government initiatives. Government कोशिश कर रहा है, no doubt the government is trying. This is a societal issue. It's not just the government's issue, it's a societal issue. काफी साल से ये प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं, इसीलिए इसको बहुत जल्दी खत्म कर पाना
sudden khatam kar pana is not possible. And also you have to remember one thing, whenever we talk about the concept of social justice or any social issue, ye ek evolutionary concept hai. And evolution is a painfully slow process. You don't get to see the changes within a day or maybe within few years. It takes time. It will take generations. It's not, ये एक तख्ता पलट का सिचुएशन नहीं है, क्रांति नहीं ला सकते, क्योंकि ये एक ह्यूमन माइंडसेट की बात है, एक अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों में. सो इट टेक्स टाइम, इट विल टेक some time, maybe few more generations, but we are aiming towards that, and even the government is working. So what are the things that the government has done and the government is doing? So constitutional provisions jo humne dekha, we spoke about article 17, which is about abolition of untouchability. Next is article 21, which talks about right to dignity and life, and it also talks about right to a dignified livelihood. So you have the right. Agar aapko wo kaam nahi karna hai, to please don't do it and go towards a dignified form of livelihood. Article 23 prohibits forced labor. So there were some cases previously, mainly historically अगर हम देखें तो ये bonded laborers की तरह काम करते थे, इनको जबरदस्ती एक bonded labor type की situation में रखा जाता था, and they were forced to do, bound to do this manual scavenging job. But now Article 23 prohibits any kind of bonded labor. So Article 243G and 243W, they basically give the local governments rights to work on these kind of issues. So any kind of sanitation and hygiene related issue has been given into the hands of the local government. So they can make laws, they can come up with various provisions on the basis of which वो manual scavenging के ऊपर laws ले आ सकते हैं, कुछ acts ले आ सकते हैं. ठीक है? Coming to the laws and judgments. So first one is Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act of 1993. That is, it has been prohibited. This fact, that is manual scavenging जो है, especially in dry latrines, it has been prohibited. Dry latrines मैंने पहले ही कहा, जहां पर water facility नहीं है, तो वहां पर you have to collect the excreta, the human excreta, and go and dispose it off somewhere else. So it has prohibited the construction of dry latrines and also employment of people in such dry latrines. But इसके issue क्या थी कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन इशू से ये त्रस्त था. नाउ आप अगर लोगों को प्रोहिबिट कर रहे हैं कोई काम करने से, आप अगर किसी की लाइवलीहुड छीन रहे हैं, सो यू नीड टू गिव देम सम अदर फॉर्म्स ऑफ लाइवलीहुड. अदरवाइज व्हाट दे विल डू, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो पहले कुछ ना कुछ करके, ऑल्दो डिमीनिंग, बट एटलीस्ट दे वर गेटिंग सम मनी आउट ऑफ इट. नाउ दे डोंट हैव एनी वे टू गेट मनी, बिकॉज अब उनको काम कौन देगा? वो वही काम कर रहे थे. सोसाइटी ऑलरेडी उस काम को हीन नजर से देख रही है, आपको हीन नजर से देख रही है, एंड नाउ you don't, the government suddenly comes and says that you can't be working as a manual scavenger. So the society will not give you any other job. Where will you go now? You don't have any other option. So that was the main issue related to this, जिसके वजह से ये प्रोग्राम जो है, ये इसमें फ्लॉज थे और इसने एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज देखे. नेक्स्ट विच वी टॉक अबाउट, जो 2013 में एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, विच इज द वन विच मेड इट इम्पॉर्टेंट, और जिस वजह से ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाया. रिहैबिलिटेशन कि हमने लाइवलीहुड ली उनसे, नाउ वी विल प्रोवाइड देम सम अदर फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड, जो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है. सो इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स in any form. Manual scavengers will not be employed. Next, it mandates the conversion of dry latrines to sanitary ones. Either वहां पर आप water facility provide कराओ अगर कोई ऐसी dry latrine है तो, और else आप उसको उसके decomposition का या कोई और सुविधा लेकर आओ. whichever way, dry latrines को proper systemic बनाओ और उनको प्रॉपरली जो डिस्पोज ऑफ हो सके खुद से ह्यूमन एक्सक्रीटा, उस पर अब आपको काम करना है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स रिहैबिलिटेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस. अब आज तक जो इंसान एक काम करता आ रहा है, उसको पता तो है नहीं कि अब आगे वो क्या कर सकता है. आज के पहले तो वो ऑप्शंस उसको मिला नहीं था.
So now this act talks about rehabilitation, and how will they ensure rehabilitation? They will go for skill development. ठीक है, इन लोगों को ट्रेन किया जाएगा कुछ और काम करने के लिए. इट कैन बी एनी अदर वर्क. They can be they can be trained to become mechanics, they can be trained to do masonry work. बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें skilled laborers की जरूरत पड़ती है, मींस skilled and unskilled laborers की जरूरत पड़ती है. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टेक्निक्स आपको सिखा दिए जाएंगे और आप कुछ और काम करेंगे, बट मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम नहीं करेंगे. एंड उसी से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी, बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट. आपसे लाइवलीहुड ली जा रही है, सो यू विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस while going through that skill development, while going through that training, so that आप ट्रेनिंग के साथ साथ आप थोड़े पैसे भी कमाओ एंड आप उस पैसे का यूज कर सके अपनी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए. ओके, नाउ इट ऑल्सो पेनलाइजेस एनी काइंड ऑफ एजेंसी और एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयर who is hiring manual scavengers. And you have to make one thing clear, that manual scavenging is not the women or the ladies or the people who come to clean your toilets. That is not basically manual scavenging. Manual scavenging deals with अगर आप हाथ से, खुद के हाथ से चीजें साफ कर रहे हैं, यू आर कलेक्टिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड क्लीनिंग इट, दैट इज बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है, सो इफ यू आर वेयरिंग ग्लव्स, इफ यू आर प्रोटेक्टेड, इफ देयर इज अ मैकेनाइज्ड सिस्टम जिसके बेसिस पर आप क्लीनलीनेस फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट मैनुअल स्कैवेंजिंग, दैट इज जस्ट आप सफाई कर्मचारी हैं. नाउ व्हाट वर द अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड? If there is any death which is related to manual scavenging and all, Supreme Court की guideline थी that they will be given higher compensation, approximately 10 लाख के लगभग compensation देने की बात हुई थी अगर कोई भी ऐसी सीवर related death देखने को मिल रही है. Fine. And also there will be insurance that ये सीवेज जो क्लीन किया जा रहा है वो मैकेनाइज्ड तरीके से क्लीन हो. Towards the end of the video I will tell you various mechanized forms that is being followed in recent time. So this was Supreme Court's judgment. Supreme Court ने कुछ guidelines दी थी कि या तो अगर कोई ऐसा मैनुअल स्कैवेंजर है जिसकी डेथ हो रही है तो उनको प्रॉपर कंपेंसेशन दी जाए उनके फैमिली को, एंड ऑल्सो जो भी सीवेजेस अभी रनिंग है उनको मैकेनाइज्ड तरीके से क्लीन किया जाएगा. Now, coming to some welfare schemes, some schemes which is initiated by the central government. So, SRMS is one of the schemes which was proposed in 2007. Self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers. ये जैसे मैंने आपको कहा previously that these people, the people who were employed as manual scavengers after 2013 जो act था उसके बाद इनको rehabilitation measures भी दिए जाएंगे, इनको कुछ पैसे दी जाएंगे, कुछ financial assistance दी जाएगी. So one time cash assistance of 40,000 rupees. Apart from that, while they are going through the skill development training, इनको 3,000 रुपए मंथली पे की जाएगी while they are going through the training. And apart from that, loan up to 15 lakhs at concessional rates. Interest rates बहुत ही nominal होंगे, बहुत ही subsidized form में होंगे ताकि ये अपनी कुछ initiative start कर सके. अपना कुछ अगर if they want to go for some small scale businesses, so they can go for that and start that. अब वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम नमस्ते स्कीम विच इज इन न्यूज नाउ. अभी कुछ टाइम पहले इस स्कीम से रिलेटेड एडिटोरियल, हिंदू के एडिटोरियल में एक आर्टिकल भी आया था, सो आप इसको देख लेना. आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड द लास्ट वीक ऑफ जुलाई देयर वाज वन एडिटोरियल रिलेटेड टू दिस स्कीम. सो नमस्ते स्कीम, व्हाट इज द नमस्ते स्कीम? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. ओके, इट वाज प्रपोज्ड बाय मोहुआ एंड MOSGI, Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Social Justice and Empowerment. इनका मेन गोल क्या है? That sanitation work में zero fatalities हो, zero loss of life when we are dealing with sanitation and hygiene work. So इसके key features क्या है? ये 50,000 workers को in 500 cities mechanized cleaning के लिए train करेंगे. Got it? In like top 500 cities, जो भी top 500 cities है आइडेंटिफाई किए जाएंगे और यहाँ पर 50,000 से ज्यादा वर्कर्स जो कि सफाई कर्मचारी हैं इनको
एक मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिए ट्रेन किया जाएगा ताकि मशीन का यूज करके साफ सफाई कर सके, इनको खुद की शारीरिक शक्ति, शारीरिक एफर्ट्स अपने ना लगाने पड़े. दे जस्ट मेक यूज ऑफ द मशीन एंड दे go for all the cleanliness. Also, they will ensure PPE kits, health insurance and safety gears. अब तक इससे पहले क्या इश्यूज आ रहे थे ना कि कोई प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं पहनते थे, कोई प्रोटेक्टिव कपड़े नहीं पहनते थे, खुद ही गंदगी में उतरते थे और गंदगी को साफ करते थे. बट नाउ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी इवन इफ इट इज मैकेनाइज्ड क्लीनिंग. द मैकेनाइज्ड क्लीनिंग भी अगर हो रहा है फिर भी इनको पीपीई किट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. नेक्स्ट इज स्किल इंडिया एंड पीएम स्वानिधि. This scheme is mainly for the street vendors. इन दोनों को मर्ज करके स्किल इंडिया एंड पीएम स्वानिधि दोनों स्कीम्स को मर्ज करके नमस्ते स्कीम के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि इनको स्किल भी मिल सके, बिकॉज रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं ना, सो दे शुड गेट अदर ऑप्शंस. क्या लाइवलीहुड वो फॉलो करना चाहते हैं, सो दे विल गेट अदर फॉर्म्स ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शंस. एंड ऑल्सो थ्रू द स्वानिधि स्कीम दे विल गेट सम लोन, सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसके बेसिस पर इफ दे वांट वो अपना कोई भी अगर स्टार्टअप और व्हाटएवर दे वांट टू स्टार्ट, अपनी छोटी मोटी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दे कैन डू दैट विद दिस स्वानिधि स्कीम. Next, some other schemes which are related to this, related to manual scavenging. One is the Swachh Bharat Mission. Swachh Bharat Mission ड्राई लैट्रीन्स को कन्वर्ट करने की बात कर रहा है. ट्विन पिट सिस्टम था, हम अभी डिस्कस करेंगे शॉर्टली. विल डिस्कस व्हाट इज द ट्विन पिट सिस्टम. सो ट्विन पिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत. तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को कुछ हद तक सफाई करने में, मतलब इराडिकेट करने में इसमें बहुत हमारा मतलब गवर्नमेंट का बहुत भारी योगदान रहा है. स्वच्छ भारत मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस दैट हैव बीन ब्रॉट. एंड इसमें काफी तरीके से जेंडर्ड अगर हम एस्पेक्ट भी देखें, अगर हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की एस्पेक्ट भी देखें, सोशल जस्टिस के बहुत सारे एस्पेक्ट इस स्कीम के तहत आते हैं. सो स्वच्छ भारत मिशन पर मेरा ही एक डिटेल्ड वीडियो है. यू कैन गो एंड सर्च एंड फाइंड आउट व्हाई द स्वच्छ भारत मिशन was so successful, because in 2024 the Swachh Bharat mission had completed 10 years. So you should go and watch like what was so unique about the Swachh Bharat mission. Next is the PM Awas Yojana. PM Awas Yojana जिसके तहत सफाई कर्मचारी जो है उनको मैंडेटरीली एक पक्का घर प्रोवाइड कराने की बात की गई थी. नेक्स्ट इज नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच अगर ये फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन इन सब चीजों से रिलेटेड होगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा लोन फॉर एनी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. सो दिस वाज आल्सो डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर सफाई कर्मचारी, ताकि इनको अगर लोन चाहिए टू स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, अपने कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए, सो दे कैन डू दिस. एंड द लास्ट was the टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस. किस तरीके से इस मैनुअल स्कैवेंजिंग या सैनिटेशन वर्क का जो मेनेस है, इसको किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज कर इस काम को और थोड़ा डिग्निफाइड बना सकते हैं. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट was the Bandicoot robot. Bandicoot robot, it looks something like this. It is basically a robot जिसके साथ क्लॉज अटैच्ड है. इट हैज क्लॉज अटैच्ड और वो रोबोट सीवेज में जाकर, मतलब जो भी वहां पर मैन होल है उस मैन होल में उतरकर, इट्स ऑल मैकेनाइज्ड, देयर इज अ लॉन्ग क्लॉ जाएगा मैन होल में उतरकर, इट विल कलेक्ट ऑल द डर्ट, लिफ्ट इट एंड ड्रॉप इट आउटसाइड. सो जो काम एक इंसान को नीचे घुसकर अंदर सीवेज में घुसकर करना पड़ रहा था, नाउ एवरीथिंग दिस बैंडिकूट रोबोट इज डूइंग. और ये स्टार्ट किसने किया था, एक केरला बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है जेन रोबोटिक्स. सो जेन रोबोटिक्स इज द स्टार्टअप जिसने बैंडिकूट रोबोट स्टार्ट किया था. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स फैक्ट. नेक्स्ट इज सीवर क्रॉक. सीवर क्रॉक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इक्विपमेंट जो कि सीवेजेस में बीच बीच में काइंड ऑफ लाइक अ फिल्टर
अटैच कर दिया जाता है। सो कोई भी ऐसा लाइक प्लास्टिक्स और ऐसे कोई बड़ी चीजें हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल है, वो उसमें जाकर फंस जाते हैं। लाइक सीवेजेस में भी जाते हैं ना, बहुत सारे प्लास्टिक्स एंड बॉटल्स ये सब फंस जाते हैं, जिसको निकालने, जिसके वजह से क्लॉग्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सीवेजेस हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। इनको मिटिगेट करने के लिए सीवेज क्रॉक्स लगाए गए हैं, जो कि इनको पहले ही कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करके इवेंचुअली समवन विल अपलिफ्ट इट एंड ड्रॉप ऑल दीज नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स आउटसाइड। नेक्स्ट इज रिमोट ऑपरेटेड मशीन टू क्लीन द क्लॉग्ड सीवर्स। अब रिमोट ऑपरेटेड मतलब मैनुअली हैंडल करने वाले मशीन्स भी नहीं, अब रिमोट ऑपरेटेड मशीन्स भी आने लगे हैं, जिसके थ्रू लाइक दिस बैंडिकूट रोबोट ओनली, मे बी इट वाज मैनुअली लाइक मैन हैंडल्ड, बट नाउ बिकॉज ऑफ रिमोट ऑपरेटेड हमें शायद किसी इंसान की जरूरत ही ना पड़ेगी। आप रिमोट दबा दो और वो अपने आप सारा काम साफ कर लेगा। सो देयर शुड नॉट बी एनीवन जो ये काम करे। ये काम किसी इंसान के लिए होनी ही नहीं चाहिए। अगर इतनी ज्यादा ह्यूमैनिटी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही है, तो इस काम के लिए हम किसी इंसान को क्यों रखें? इंसान का काम होना चाहिए क्रिएटिव काम करना, इंसान का काम होना चाहिए अपने ह्यूमन रिसोर्स की, अपनी माइंड को कंप्लीटली डेवलप करना, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दैट वी टॉक अबाउट, टू develop yourself to the full potential, and you don't need to do these kind of disgusting jobs. नेक्स्ट कमिंग टू वेरियस अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जो कि हमने बायो टॉयलेट्स या ट्विन पिट लैट्रिन्स की बात की थी, जो एसबीएम में भी यूज होता है, स्वच्छ भारत मिशन में भी यूज हुआ था। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन पिट लैट्रिन्स? अगर यहाँ पर है, सी व्हाट हैपेंस इज फर्स्ट 5 years, अगर आपने एसबीएम भी देखा होगा तो टॉयलेट के साथ जो दो ड्रेनेज थे, देयर वर बेसिकली 2 pits। सो द फर्स्ट 5 years के लिए एक वाल्व जो है, एक वाल्व ओपन होगा, जो भी वेस्टेज इकट्ठा होगा या ह्यूमन एक्सक्रीटा इकट्ठा होगा, वो एक पिट में जाएगा, वो अक्यूमुलेट करेगा फॉर 5 years, और फिर इस वाल्व को बंद कर दिया जाएगा। इस वाल्व को चेंज कर दिया जाएगा इस तरफ, और इस वाले पिट को खोलकर नेक्स्ट 5 years के लिए यहाँ पर in the next pit your excreta will get accumulated. While the excreta is getting accumulated for 5 years in one pit, this pit is so designed कि जो भी एक्सक्रीटा 5 साल तक इकट्ठा हुआ था, अब वो डिकम्पोज होना शुरू होगा, और इस तरीके से डिकम्पोज होगा कि उसके आसपास का जो भी सराउंडिंग है, जो भी सॉइल है, वो डिग्रेड नहीं होगा। इनफैक्ट उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी वेस्ट है वो डिग्रेड होने के बाद इट विल गेट अक्यूमुलेटेड एज अ मैन्योर। सो इफ यू वांट यू कैन कलेक्ट दैट डिकम्पोज्ड मटेरियल and even distribute it in the soils to get proper harvesting, because it will act as a fertilizer, an organic fertilizer. The other thing is about biodigesters. What is the work of a biodigester? अगर आप यहाँ पर देखें तो सपोज आपके हाउस होल्ड से या आपके किसी भी लोकल ड्रेनेज सिस्टम से यहाँ पर आके आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा कलेक्ट हो रहा है, बड़ा पिट है जहां पर आके कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर बायो रिमीडिएशन के टेक्निक से कुछ बायो लाइक माइक्रोब्स या ऐसी कुछ चीजें ऐड की जाएंगी यहाँ पर, जिसके बेसिस पर एनएरोबिक डाइजेशन होगा। एनएरोबिक डाइजेशन इज digestion or fermentation in the absence of oxygen. So whatever digestion that is, like, we are adding microorganisms to it, and this is a bioremediation technique using microbes. Any kind of digestion, any kind of decomposition which is happening in the presence of microbes. So what is happening? Waste यहाँ पर आपका इकट्ठा हो रहा है, आप उसमें microbes डाल रहे हो। Microbes in the absence of oxygen इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है, सो इट विल गिव आउट सम गैसेस। Those gases will be collected and they will be going out as cooking fuels. जैसे हम CNG का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी तरीके से they will get accumulated and they will go out as जो मेनली जो उज्ज्वला योजना है, हम इसको उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। आपके घर में ही ऐसे बायो रिमीडिएशन टेक्निक्स, ऐसा सेटअप अगर हम किसी विलेज में एस्टैब्लिश कर दें, सो व्हाट विल हैपन, जो कुकिंग फ्यूल है
जो बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है, जिसके वजह से इतने सारे जेंडर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो कुकिंग फ्यूल का हम यहाँ से ही जनरेट कर सकते हैं और इसको हम घर घर पहुंचा सकते हैं. सो देयर वोंट बी लाइक, एक तो लाइक इट विल प्रोवाइड टू वे थिंग्स. दो चीजों की बेनिफिट्स आपको होगी. एक तो आपके जो भी वेस्टेज है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो आप properly decompose कर पा रहे हैं without affecting the soil and without affecting the fertility of the nearby land mass. And the next thing is, जो भी आपके गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे गैसेस आप यूज कर सकते हैं एज कुकिंग फ्यूल और इवन टू रन व्हीकल्स वट एवर. लाइक आज हम ऑटोज एंड ऑल देखते हैं जो सीएनजी पर रन करता है, हमें उसकी भी जरूरत नहीं होगी. वी कैन जस्ट अक्यूमुलेट, वी कैन जस्ट कलेक्ट दीज काइंड ऑफ गैसेस एंड वी कैन यूज इट फॉर रनिंग आवर व्हीकल्स एंड ऑल. नेक्स्ट इज, ये जो स्लरी प्रोड्यूस करेगा, जो भी, बिकॉज आफ्टर डाइजेशन समथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वो स्लरी या वो जो भी वेस्ट मटेरियल जो कि रह जाएगा आफ्टर डिकम्पोजिशन, दैट कैन अगेन एड एज अ फर्टिलाइजर. सो यू कैन सी कितने ज्यादा इसके मल्टीफेसेटेड इफेक्ट्स है और कितने ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स है अगर हम टेक्नोलॉजी का राइट यूज करते हैं. राइट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम कर रहे हैं तो हम कितने सारे इश्यूज, सोशल इश्यूज से भी मिटिगेट कर सकते हैं, हम हमारे इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक इश्यूज से भी मीट कर सकते हैं. एंड रही बात मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तो वो तो हो ही रही है. एक इतने मतलब एक सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट जो बना हुआ है, उसको भी तोड़ने के लिए हम एक ह्यूमन रेवोल्यूशन भी ला रहे हैं इस फॉर्म से. नाउ कमिंग टू द वे फॉरवर्ड, हमने इतने सारे इश्यूज देखे, हमने इतने सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस देखे, और हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रहा है, और हमें ये भी पता है कि इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन इशू एवरीवेयर. सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, हाउ शुड वी कम आउट ऑफ दिस मेनेस. सो फर्स्ट इज 2013 वाला जो हमने रिहेबिलिटेशन का जो एक्ट पढ़ा था, सो दैट एक्ट has to be strictly implemented. We need to make sure कि जो manual scavenging का issue है, ये deep rooted है. It is deep rooted in history. ऐसा नहीं है ये कि कल परसों की बात है, कल परसों का कॉन्सेप्ट है, या 2-3 साल पुराना कॉन्सेप्ट है. दिस इज समथिंग विच इज डीप रूटेड इन हिस्ट्री. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट अगर इसको हटाना है, जड़ से खत्म करना है, तो वी नीड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वट एवर एक्ट वी आर कमिंग अप विथ. फुल स्केल mechanization of sanitation work. अभी भी partly mechanized है, it's not completely mechanized. Any kind of sanitation work should be full scale mechanized. We have various technological advancements and government can invest as much as it wants, क्योंकि it's not something technology इसमें बहुत साल से काम कर रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है उससे रिलेटेड. If the government wants, if the people of the country want, इसको हटाना उतनी बड़ी बात नहीं होगी. Next is, we need to strengthen the Namaste schemes with a proper budgetary support. We need to make sure कि जो भी हम skill development और स्वानिधि schemes की बात कर रहे हैं, इसमें integrate भी कर रहे हैं Namaste schemes के साथ. So we need to make sure कि हम इसको थोड़ा और proper budget allocation कर सके, थोड़ा ground reality पढ़े, टॉप डाउन अप्रोच नहीं रख के बॉटम टू टॉप अप्रोच रखें, हम जाके ग्राउंड रियलिटी चेक करें सोशल ऑडिट्स के थ्रू एंड मेक श्योर करा सके, इंश्योर करा सके कि ये जो स्कीम है एक प्रॉपर बजटरी सपोर्ट के साथ इम्प्लीमेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज, देयर शुड बी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, right? Alternative livelihoods and education and awareness. Community based rehabilitation क्यों? क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि ये लोग जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं. Even where we stay, our office is in Old Rajendra Nagar और इसके जस्ट बगल में करोल बाग है. तो करोल बाग का एक सेक्शन है जो कि वाल्मीकि समाज वहां पर रह रहा होता है. वो अच्छे हैं, like they are quite developed now because they are staying in the main part of the city, but still the other major parts, major जो mainstream society है, वो उनको they look down upon them. So this is important that आप एक community level livelihood establish कराएं. आप बहुत ही छोटे लेवल से, लाइक एजुकेशनल लेवल से आप चीजों को चेंज करवा सकते हैं. एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. सो मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस कम्युनिटी दे engage in educational activity and not in any other activity. Next is social attitude shift. We need to come up with campaigns for dignity of
these manual scavengers, how we need to restore the lost dignity जो कि historically इतने सालों से इनको प्रताड़ित किया गया है in the form of इनकी जो rightful dignity है वो snatch कर ली गई है, उसको हम किस तरीके से restore करवा पा रहे हैं. And दलित हिस्ट्रीज को भी टेक्स्ट बुक्स में इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज जब हमारी नेशनलिज्म का मूवमेंट चला था तो बहुत सारे हरिजन समाज के भाई बहन हमारे थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जी तोड़ मेहनत करके साथ, मतलब गांधी जी का साथ दिया था इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. सो इन सारे हिस्ट्रीज को भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में इंट्रोड्यूस करना और इनकलकेट करना जरूरी है. We need to come about all, like we need to know about all these unsung heroes who have been left alone in the books of history. Next is urban infrastructure upgradation, because this is not just a rural issue, this is also an urban issue, and urban cities में in fact ज़्यादा manual scavenging की issues होती है, क्योंकि these particular section of the society वो like they live in slums and all, they live in very बहुत ही छोटे छोटे कमरों में रह रहे होते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से अपना दिनचर्या मतलब मैनेज कर रहे होते हैं with very minimum resources. So we need to make sure that हमारा जो urban development है उस लेवल का हो ताकि इनको हम properly cater कर सकें. Next is modern toilets, which I spoke about. There should be eradication of complete eradication of dry latrines, or even अगर sanitation latrines हैं भी, like even if there is water facility, it should be mechanized. We need to come up with systems जिसमें हमें जरूरत ही ना पड़े किसी मैनुअल लेबर की, कि वो साफ सफाई के लिए किसी इंसान की जरूरत ना पड़े, वो इस तरीके से मैकेनाइज कर दी जाए कि वो सेल्फ क्लीनिंग हो. नेक्स्ट इज रोल ऑफ जुडिशरी एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि इनसे रिलेटेड कुछ ग्राउंड रियलिटीज लेकर आ सके, कुछ प्रॉपर रियलिटीज, कुछ फैक्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट करके ला सके, and the government can come up with better schemes and better welfare related measures for such section of the society. Next is improving private sector startups to scale safe technology. Again, because government is, अगर इस क्षेत्र में हम गवर्नमेंट का रोल देखें तो गवर्नमेंट कभी भी स्पेशलाइज्ड इनिशिएटिव्स नहीं ला सकता है. गवर्नमेंट विल ऑलवेज कम विद अ जनरल माइंडसेट. सो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की एनरोलमेंट इसमें बढ़ाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ाते हैं, तो इट विल बेसिकली बी दैट दे विल कम अप विद अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम. जैसे कि हमने जेन रोबोटिक्स का एग्जांपल देखा जो कि केरला बेस्ड स्टार्टअप है. सो इट केम अप विद दैट बैंडिकूट रोबोट. ऐसे ही अगर हम प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ाएं, so there will be more technological advancement, and with the help of technology, with the help of artificial intelligence, hopefully we can help mitigate this social menace. So that was about manual scavenging. थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, बट yes, डिटेल में समझाना जरूरी था. ऑल्सो इस साल के मेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. So keep following Zen Study. आप इस हमारे जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करिए, अच्छे से पढ़िए, एंड एनी काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू यूपीएससी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. हमारे सारे हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं. आपको जहां कहीं भी लगे आप हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, जो कि व्हाट्सएप पे हम चला रहे हैं. एवरी डे वी शेयर करंट अफेयर्स, वी शेयर अपडेटेड मटेरियल विच इज करंट कॉन्टेक्स्ट में. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप इशू, एनी काइंड ऑफ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड इशू यूपीएससी में, आपको कैसे बिगिन करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, एनी काइंड ऑफ इशू, just feel free to contact us. So thank you for watching this video. Stay tuned with Zen Study and all the best for your upcoming mains exam.